वंडोर के सागर तट पर अंडमान निकोबार तटरक्षक मुख्यालय क्षेत्र ने सफाई अभियान चलाया। 21 सितंबर को आयोजित इस सफाई मुहिम में तटरक्षक के अधिकारी, कर्मी, वंडोर ग्राम पंचायत और टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के विद्यार्थी शामिल हुए। तटरक्षक के महानिरीक्षक कमांडर नीरज तिवारी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में सफाई अभियान के प्रतिभागियों को संबोधित किया। Indian Coast Guard since 2006 has been coordinating International Coastal Cleanup Day all over the Indian Peninsula to encourage clean up the coastal line and create awareness about preserving and protecting the oceans and waterways. As part of International Coastal Cleanup Day 2024 and towards ongoing efforts of government for the Swachh Bharat Abhiyan and Swachh Sagar Abhiyan in line with the vision of Honorable Prime Minister, today a cleanup drive has been organized at this location. The theme of this year's Coastal Cleanup Day is See the Change and is called for the action to help clean up the oceans, rivers, lakes and waterways and to raise awareness about growing marine debris. The event also emphasized on spreading awareness and regarding negative impact of trash, particularly polythene and plastics on wildlife and human beings. Plastics especially last a very long time in the ocean and in such abundance that there are 46,000 individual pieces of plastics littered for every square mile of a seabed. This is a dire situation of health of the Earth's ocean which directly affects the health of the people. The impact of our collective efforts today will resonate far beyond these shores and even small actions can make a big difference. Every straw, every discarded fishing net, every piece of trash you clean up today can lead to clear, healthier ocean. Ladies and gentlemen, we are aware thousands of tons of garbage is discharged into sea, thereby polluting and endangering the marine life. The trash in the water impacts the world very adversely. In partnership with volunteers, organizations and individuals around the globe, the International Coastal Cleanup engages people to remove trash from world's beaches and waterways. Empowering people and like all of you to take an active role in preserving and cleaning up the coast and water bodies surrounding us will go a long way in helping conservation of the ocean. The International Coastal Cleanup Day serves as a reminder for all of us to keep our coast clean and oceans safe. Not taking much time, I would like to thank all the sponsors and appreciate all the participants for being present here for the noble cause of saving our environment. कमांडर नीरज तिवारी ने झंडी दिखाकर सफाई मुहिम का शुभारंभ किया। मुहिम के प्रतिभागियों ने समुद्र तट से कांच एवं प्लास्टिक के बोतलों सहित अन्य अपशिष्टों को हटाया और उन्हें बस्तों में भरकर उचित निपटान के लिए नगरपालिका परिषद के हवाले किया गया।
सफाई मुहिम के बाद तटरक्षक कमांडर नीरज तिवारी ने प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। Signify this with all of us out here from all walks of life coming together as a family for the noble cause for the environment. वंडूर ग्राम पंचायत के प्रधान अधीर दास और टैगोर कॉलेज की संकाय डॉक्टर मंजुलता राव ने सफाई मुहिम के प्रतिभागिता के बारे में अपने विचार रखे। वांडर पंचायत का प्रधान का नाते जो आज यहाँ में जो कोस्ट गार्ड का ओर से जो प्रोग्राम किया, बहुत सुंदर से प्रोग्राम हुआ है। लेकिन इस स्वच्छ भारत मिशन का नाते जो हमारा सफाई रखने का है, क्योंकि हमारा वांडर पंचायत बहुत ही साफ सफाई है, फिर भी हमको बहुत कुछ जो बाहर से जो हमारा जो टूरिस्ट लोग आते हैं, जैसे कि कोई पार्टी बनाते हैं, कोई जगह पे कोई पार्टी के लिए आने के बाद क्या होता, कचरा को प्लेट उलट बगल में रख देता। इसीलिए हम पूरा अंडमान का जितना भी हमारा जो गेस्ट है वांडर में जो आते हैं, इसीलिए सबको बोल रहा है जो अपना अपना जो भी प्लेट वगैरह जो भी आपका ऑनर्स उसको साथ में लेके जाइए। अगर नहीं तो हमारा डस्टबिन है, आप लोग डस्टबिन में रखिए। हमारा स्टाफ, हमारा जो पंचायत का जो सैनिटरी स्टाफ, उन लोग खुद उसको उठा के लेके जाएंगे। लेकिन आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा है, आप इधर उधर गंदगी मत करिए, जगह में रखिए। अगर हमारा बहुत दिन से हम लोग देख रहा है, अभी सब जगह से वांडर पंचायत में हम हर जगह सफाई के ऊपर इतना ध्यान दिया है, क्योंकि हमको चाहता है जो सफाई बिल्कुल कोई क्लीन हो, कोई भी जगह गंदगी ना हो। हमारा मोदी जी का जो सपना है, हमारा देश में जो पूरा देश हम चाहता है कि हमारा एक एक आदमी अगर अपना अपना घर को सफाई कर दे, अपना पूरा देश सफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है जो हमको देश खुद सब दूसरा को सफाई करना, अपना अपना घर को सफाई करने से टोटली पूरा देश सफाई होगा। क्योंकि हम लोग सब मिलके अपना चीज़ को सफाई करना, कोई चीज़ गंदगी पानी में नहीं फेंकना। कोई भी हम लोग पानी में फेंके उसको घूम फिर के हमारा पास ही आते। जैसे कि हम लोग मच्छी खा रहा है, प्लास्टिक जाके मच्छी खाएगा, उसको घूम फिर के ऑर्गेनेट हमारा शरीर में आ रहा है। इसीलिए हम लोग चाहता है जो बहुत सुंदर तरीक़े से पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहा है, आप सब कोई भी चीज़ कोई भी जगह में गंदगी ना फेंके। जो भी अपना बहुत सारे लोग देखा गाड़ी में जाते वाला फेंकते हैं, गाड़ी में मत रख, अब गाड़ी में डस्टबिन में रखिए। कोई भी जगह डस्टबिन देखता है उधर ही फेंकिए। इसलिए मेरा वांडर पंचायत साफ सफाई रहे। हम भी चाहता है जो आगे से भी और भी सफाई रखेंगे, बिल्कुल गंदगी होने नहीं देंगे। हम कोस्ट गार्ड को सपोर्ट करने आए हैं। यहाँ पर क्लीनिंग एक्टिविटीज़ जो हो रहा है, बीच क्लीनिंग एक्टिविटीज़, उसमें हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स टोटल 89 सभी मिलकर 89 नंबर्स में इधर आए हुए हैं। और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमने अपना सहयोग दिया है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर फीमेल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बीच क्लीनिंग के लिए आए हैं। बीच क्लीनिंग हमारा मुख्य जिम्मेदारी है और विश्व में हमारा जो ये सागर है, सागर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम सब आए हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हमने पूरी अपनी मेहनत से यहाँ पर काम किया है। इस मौके पर सैंड आर्ट के कलाकार मोहन राव और योगेश ने भी दूरदर्शन से बातचीत की। हर साल में हम लोग एक मौका मिलता है कोस्ट गार्ड की तरफ से सैंड आर्ट बनाने के लिए। तो सैंड आर्ट बनाने के लिए जब मौका मिलता है, उसके बाद हम लोग एक एक टाइम में एक अलग अलग थीम के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। एक कोस्टल क्लीन अप डे का हम लोग का जो प्रोग्राम है वो होता रहेगा। उसका सैंड आर्ट का जो प्लान करके फिर हम लोग रात को आएंगे। रात को आने के बाद रात से सुबह तक हम लोग सैंड वर्क इधर करेंगे। रात भर से सुबह तक हम लोग सैंड आर्ट करेंगे। एक इकट्ठा करके बालू सब लेके आके उसको फिर एक शेप में लेके आके इसमें बोतल वगैरह जो क्लीन अप जो होता है, उसके बाद हम लोग टोटल्स बनाता है। उसके बाद हम लोग गोबल बनाता है, जो हम लोग का जो हेल्थ जो है। उसके बाद जो भी नया नया फिशिंग हो गया, उसके बाद हम लोग बोटल्स, ये सब जितना सी के रिलेटेड में, कौशल के रिलेटेड में, वो सब उसमें एक कला बना के हम लोग को
कोस्ट गार्ड को हम लोग देता है। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद ने सतत शहरी विकास गिस इंडिया के सहयोग से वृक्षाबाद में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सुविधा को स्थापित किया है। इस फैसिलिटी सुविधा का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्र के शिलापट्ट का अनावरण किया और रिबन काटकर उसका उद्घाटन किया। इस मौके पर गिस के निदेशक क्रिस्टिन कैफेनस्टीनर, नगरपालिका परिषद के सचिव अमित काले, परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा, परिषद और गिस के अधिकारी और पीबीएमसी के कर्मचारी मौजूद थे। गिस इंडिया के निदेशक ने मुख्य सचिव केशव चंद्र को इस रिकवरी फैसिलिटी केंद्र की स्थापना और इसमें कचरों को अलग अलग कर उसके उचित निपटान के लिए स्थापित किए गए मशीनों और उसकी कार्य प्रणाली की जानकारी दी। साथ ही इसका निदर्शन भी प्रस्तुत किया गया। So what comes off the end can also be preparation or as for cement kilns. So Jordan would undergo different treatments. Yes, absolutely. Look at it. Yes. And then we burn. Yes. Yes. Paint and filter. Right. We'll go through that process now. So this is called. In bigger facilities, this is done as a water open discussion. Light plastics. That would segregating by the different materials and colours. But yes, yes, and we see that's to have enough material. The reason why the demo and what we get is from 1 meter cube. So this again is a size reduction process. So this is prevents that from spilling in. So what this does is it prepares it for the agglomeration machine. So it homogenizes the different polymers into homogeneous mix. About efficiency of transport, but this sort of is but this is also the point where you can claim the EPR credits.
standard that is required for plastic waste I think we have some before pictures. It's a massive effort. Yeah. इस अवसर पर मुख्य सचिव ने नगर पालिका परिषद के बेहतरीन सफाई कर्मचारियों और पोर्ट ब्लेयर शहर में स्वच्छता पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले हितधारकों को सम्मानित किया। वेलकम आईटीसी। कंपोस्ट यार्ड में खाद बनाए जाते हैं सर, तो हम चाहेंगे वो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर को आपके हाथ से वो खाद वितरित कर इतना भी है एग्रीकल्चर का है कोई और इतना भी हमारा नर्सरी है और फार्म है सब में। इस मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में डाब एवं नारियल की खोल व अवशेष से छिलकों को अलग करने के लिए मशीन लगाए गए हैं। Then we can sell it, we can use it as a filling material जहाँ पे भी composting की requirement है हमारे parks में everywhere. And plus we तो सर अगर इसको सर कंपोस्ट बनाने को ऐड करते हैं तो कैटलाइजर का सर काम करता है। For the bed also ना 4 beds and yes, this soaks up the rainwaters and that creates a bit more resilience in the city in terms of water absorption. composting कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं पीबीएमसी के चेयरपर्सन, उनके सेक्रेटरी और यहाँ पे जितने भी काउंसलर्स हैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस जगह पर यदि आप पहले आए हैं तो आपने देखा होगा कि कितनी गंदगी से भरा हुआ रहता था, इसमें कोई घुस नहीं सकता था, लेकिन आज ये पूरा का पूरा एरिया ट्रांसफॉर्म हो गया है और इस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ है कि पूरे शहर की गंदगी को ये ठीक कर सकता है। इसमें बहुत सारी मशीनें लगी हैं। GIZ के हमारे 2 ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके चलते आज उनके सहयोग से ये नई मशीनें आई हैं जिसमें बहुत सारे चीज़ जिसका हम लोग ईज़िली डिस्पोजल नहीं कर सकते थे, अब उनको छोटे उसको श्रेड करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके उसका डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। पीबीएमसी को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि ये वर्चुअली मेजर लीप फॉरवर्ड है और आगे हम देखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर को देश का सबसे स्वच्छ सिटी हो और अंडमान सबसे स्वच्छ यूटी हो। इसके लिए हम जितना काम कर रहे हैं और इस तरफ जितना प्रयास है उसमें एक बहुत बड़ी पहल है। इसी को और हम दूसरी जगह भी रेप्लिकेट करेंगे और सबसे अच्छा तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा जगह जो ट्रांसफॉर्म हो गया है 1 महीने के अंदर, ये अभूतपूर्व है। तो इसके लिए मैं सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रूल है उसको थोड़ा फॉलो करें कि हर एक आदमी यदि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा तो पूरा शहर साफ़ होगा और इसमें सबों की भूमिका है, सबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आगे आए और जो घरों से कचरा निकलता है उसको अच्छी तरह सेग्रीगेट करें ताकि आगे आने वाले वर्कर्स पे भार कम हो जाए और पीबीएमसी पे भार कम हो। आप सबों को बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इस सुविधा केंद्र में प्लास्टिक के बोतलों के उचित निपटान के बारे में मुख्य सचिव को जानकारी दी गई। Of this machine, they get this cardboard bale is about 80 kilograms, 60 to 80 kilograms each, and they process about 10 of these per day, adding additional balers because they're very useful in just again getting this efficiency of transportation. So cardboard, PET, plastic, Tetra Pak, and maybe the ladies would like to say. मैं इसमें बिलिंग करते हैं। अच्छा, बेलिंग करते हैं जी। ये बेल करके रखा हुआ है। जी, बेल करके रखा हाँ, बहुत बढ़िया। वो सभी बेल हो जाता है।
जी सर, सारे बेल सारा तो- मटेरियल बेल हो जाएगा सर। तो वो प्लास्टिक। उसको तो आप जाके श्रेड करोगे? नहीं सर, श्रेड जो है वो कुछ पार्ट जो हमारे यहाँ के रोड के रिक्वायरमेंट होते हैं सर। रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉटल है इसका क्या करोगे? इसका बेल करके मैम वो बिकता भी है मार्केट में। सर इसकी हाई, इसकी वैल्यू सर बाकी प्लास्टिक से हाई है। इसको जब हम मेल्ट करके उस गट्टे मशीन से निकालेंगे सर, तो उसका रेट जो है 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मार्केट वैल्यू। So these all are revenues for. fabric out of this PET bottle. Yes. Polyester has ग्लासेस और ग्लास रेड है सर। इस सुविधा के तहत कांच की बोतलों को क्रश करके उसे भूसी बनाने का निदर्शन मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। creating changing the machine sleeve. So there are two options. This is also recyclable, and for glass which is not recyclable, we are planning that we can mix it with the MLP, shred this glass into powder, mix with the MLP, the chips and wrappers, because there's no such use, and make bricks which then can be used for community projects. हम पेपर ब्लॉक्स भी बना सकते हैं फॉर फुटपाथ एंड Yes. अभी 10 लोगों ने अप्लाई किया है। अच्छा, तो उसमें हम अभी टेक्निकल इवैल्यूएशन तो ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है जो कि वृक्षाबाद में हमने इस्टेब्लिश की है। आप देखेंगे कि ये जो पूरा परिसर था पिछले 2-3 महीने पहले अगर आते आप तो ये एक लैंडफिल के जैसे था, और आज इसको हमने इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है कि पोर्ट ब्लेयर का जितना भी कूड़ा यहाँ पे आएगा वो हम प्लास्टिक रहे, ग्लास रहे, कार्डबोर्ड, किसी भी तरह का ड्राई वेस्ट है उसको हम इस फैसिलिटी में प्रोसेस करेंगे और फिर उसको रोड के काम में, फिर बाकी भी सारे कामों में इसको यूटिलाइज़ करेंगे, प्लस इसको हम मार्केट के थ्रू मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आई वुड लाइक टू थैंक GIZ, the whole PBMC team, the chairperson, councillors, CS sir, under his able guidance and leadership I have been able to do this. So I thank everyone for this initiative. इसी तरह से हम अगर ऐसे ही ऊर्जा से काम करेंगे तो हम ये पूरा एरिया और भी डेवलप कर सकते हैं। और मेरा जो मैसेज है पोर्ट ब्लेयर के सिटीजन्स के लिए कि आप अपना परिसर जो है वो स्वच्छ रखिए, कूड़ा यहाँ वहाँ ना डालें, जितना भी कूड़ा आप दे रहे हैं वो सेग्रीगेटेड दे, गीला और सूखा जो होता है वो सेग्रीगेटेड तरीके से दे ताकि हमें भी उसको मैनेज करने में आसानी हो। तो आई थैंक यू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ पोर्ट ब्लेयर फॉर कोऑपरेटिंग विद अस। घर घर के कूड़ा अलग दे, घर घर कूड़ा गीला अलग, सूखा अलग। Okay, I'm Brian McCarthy. I'm the technical consultant to GIZ on this Cities Combating Plastic Entering the Marine Environment. So I've been working on this project for 2.5 years in Port Blair. We first did a technical assessment of the waste management sector in the city, identified where the leakages and the weaknesses in the waste flow are, and we identified from the SLRMs that there's the low value plastic, which is the multi-layered plastic crisp packets, etc., don't have a value and it's very difficult to export them. So we've built this facility in order to handle those low value plastics coming from the SLRMs in the city. This facility doesn't work without source segregation of dry waste and wet waste and hazardous waste, and we implore you, it starts with you. First, minimize the amount of waste that you generate. Once you do generate waste, then segregate it to dry and wet and make sure it goes to the SLRMs, and we can process it further and stop it from entering the environment and make Port Blair a cleaner and greener place for you to live and more prosperous as the tourists come into this lovely city to enjoy the environment. स्वच्छ भारत, स्वच्छ अंडमान, स्वच्छ पोर्ट ब्लेयर।